فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخر. محترم حاضرین جلسہ، علماء کرام اور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلافات سے بالاتر ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہیں، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار ملیں گے جو انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو اس دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص مل ہی نہیں سکتا کہ موت کا انکار کر سکتا ہو۔ موت سے کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے، جس کا مشاہدہ انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گلی کوچوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں، اپنے شہر میں کرتا رہتا ہے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر نہ پائیدار کو ختم ہونا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ میرے بھائیوں، جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ جس وقت موت کے آنے کا وقت ہوگا وہ خود بخود آ جائے گی، اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ آئے گی تو نہ تو کسی بادشاہوں کے قلعے اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی بڑے بڑے مکان اور عمارتیں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں، اسے روک سکتی ہیں۔ موت سے کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا، موت کو کوئی انسان روک ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آپ اگر کسی آفس میں جائیں گے یا کسی کے گھر جانے کی کوشش کریں گے تو دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد آپ کو اجازت طلب کرنا پڑتا۔ قرآن کریم کا اور شریعت کا دستور رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا پڑتا، پرمیشن لینا پڑتا۔ اگر اندر سے جواب آتے ہیں، اگر آپ کو پرمیشن ملتا ہے تب آپ اس کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے آفس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر اندر سے کوئی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ وہاں سے واپس جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن موت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی کڑوی پیالہ ہے کہ اس کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور اس دنیا سے وہ چلے گئے، کوچ کر گئے۔ موت جب آئی تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس وقت موت کا وقت ہوگا وہ خود بخود آ جائے گی، نہ تو اسے بڑے بڑے عمارت اور دیوار اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ موت سے نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، موت نہ تو موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے، موت سے نہ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہ سکے، اور نہ ہی ساری دنیا کا سردار، سارے کائنات کے
रहनुमा रहमतन लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से महफूज रह सके हैं। पता ही चला कि नबी है तो मौत आएगी, आलिम है तो मौत आएगी, वली है तो मौत आएगी, चाहे वो कितने ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जानदार क्यों ना हो, उसका मौत को मज़ा चखना है। बच्चे हैं तो उसे भी मौत आने हैं, नौजवान है तो उसे भी मौत का मज़ा चखना है। मौत से कोई इंसान बचने वाला नहीं है, कोई जानदार बचने वाला नहीं है। नबी है तो उसे भी मौत आएगी, औरत है तो उसे भी मौत आएगी, बच्चा है नौजवान है तो उसे भी मौत आएगी, कभी वो ताकतवर है तो उसे भी मौत आएगी, चाहे वो घास फूस की झोपड़ियों में जिंदगी बसर करने वाला क्यों ना हो, उसे भी मौत का मजा चखना है, मौत उसे भी आएगी। चाहे वो बड़े बड़े महलों में जिंदगी बसर करने वाला क्यों ना हो, उसे भी मौत का मजा चखना है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर ऐलान करते हुए फरमाया, काई मेरे बंदो, जिस वक्त तुम्हारी मौत का टाइम आ जाएगा, तुम जर्रा बराबर भी लेट नहीं कर सकते और ना ही जल्दी कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर लफ्ज़ जायका को लेकर के आया है। लफ्ज़ जायका का इस्तेमाल क्या है? अगर इस दुनिया में अगर किसी चीज़ को आप चखना चाहेंगे तो ज़बान पर डालते ही फौरन पता चल जाएगा वो चीज़ मीठी है या कड़वी। लेकिन मौत एक ऐसी शय है, एक ऐसी प्याला है, जो इंसान उसको चख लेता है वो हमसे जुदा हो जाता है, दूर हो जाता है, वो बता ही नहीं सकता कि मौत का मज़ा कैसा लगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना चाहिए कि एक दिन हमें भी मरना है, इस दुनिया से छोड़कर हमें भी उस दुनिया में जाना है जहां हमेशा हमेशा के लिए रहना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और रोज़े क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे करतूतों का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि वउदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, क़यामत के दिन वही इंसान कामयाब होगा, वही मोमिन कामयाब होगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, वही इंसान कामयाब होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, आए मोमिन बंदो, आए मुसलमानों, दुनिया की साजो समन, दुनिया की मालो मता, दुनिया के रुपया पैसा, ये तो सिर्फ और सिर्फ धोखा ही है। आज हम दुनिया के पीछे पड़कर इस तरह दुनिया के पीछे मशगूल हो चुके हैं कि हमें कोई खबर नहीं है। हम मौत को पसे पोस्ट डाल दिया है, मौत से गाफिल हो चुका है। मेरे भाइयों, हमें तो याद करना चाहिए कि हमें भी इस दुनिया से जाना है, एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। तो फिर हम इस दुनिया के चक्कर में इतना क्यों मशगूल हो गए हैं कि हम मौत को भुला डाले हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस दुनिया के पीछे तुम मशगूल हो रहे हो, जिस दुनिया के पीछे तुम फरफ्ता हो चुके हो, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए धोखे का सामान है। दुनिया में जितने सारे चीज़ें हैं, रुपये पैसा माल दौलत धन दौलत, ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें धोखे में डालने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ धोखा है। मुस्नद अबू यला के एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, आसमान और ज़मीन के सारे लोग बेहोश होकर के गिर पड़ेंगे। मलकुल मौत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करेगा कि अल्लाह, ज़मीन और आसमान के सारे लोग मर गए सिवाय उन लोगों को जिनको आपने नहीं चाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मलकुल मौत बताओ कौन बाकी रह गया है, कौन बचा है। मलकुल मौत अर्ज़ करेगा कि अल्लाह, रब्बुल
रब्बुल आलमीन आपके फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल रह गए हैं, आपके अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए हैं, और यह कि मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा मलकुल मौत याद रखो मेरे फरिश्तों को भी मरना है, जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे। तो अर्श बोलेगा आय अल्लाह क्या आपके फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तुम खामोश रहो, आज मैंने ये तय कर दिया है कि मेरा अर्श के नीचे जो भी हो सब मर जाए, लिहाजा जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे। उसके बाद मलकुल मौत से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा मलकुल मौत जरा बताओ तो सही कि अब कौन बचा है कौन बाकी रह गया है? मलकुल मौत अर्ज करेगा आय अल्लाह सिर्फ आप बाकी रह गए हैं जिनको कभी मौत तो नहीं आएगी, आपका अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी रह गए हैं, और यह कि मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा मेरा अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे, उसको भी मरना है, वो उसको भी मौत आनी है, वो भी मर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फिर मलकुल मौत से कहेगा कि आप बताओ कौन बचा है कौन बाकी रह गया है? मलकुल मौत फिर वही जवाब देगा आय अल्लाह सिर्फ आप बाकी रह गए हैं जिनको कभी मौत नहीं आएगी, और यह कि मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा मलकुल मौत तुम भी मेरे मखलूक में से एक मखलूक हो, जिस काम के लिए हमने तुमको पैदा किया था तुमने उसको पूरा किया, तुमने उसको मुकम्मल कर दिया, लिहाजा अब तुम भी मर जाओ, मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी। इस हदीस से हमें पता चलता है कि जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएंगे, मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी, वो भी मर जाएंगे। उसके बाद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बचेगा, अल्लाह के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान और ज़मीन को किताब की तरह लपेट लिए जाएंगे, 3 मरतबा फैलाएगा और लपेटेगा और कहेगा कि मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब, मैं हूँ ज़बरदस्त व गालिब। हकीकी बादशाह है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है, बाकी सब हुकूमत और ताकत फ़ानी हैं।